Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everybody can hear me? In the back? Everybody? Okay. I don't deserve to be here. There's massive imposter syndrome because there's actual scholars sitting and waiting to discuss different ideas with you guys. The only thing that I'm going to talk about is freedom of speech because my knowledge about Islam is rather basic, but my understanding of how important freedom of speech I feel is slightly better. So when we grow up in a country like Pakistan, our parents tell us what to think, what to do, what to wear, what to eat. They decide the subjects that we take. I'm sure a lot of you in this university are probably studying something you don't want to study, and your parents sort of convince you to go into that field altogether. This idea that we can't think for ourselves has led to the decay of our civilization and the ummah in general. When we started the podcast, the idea was to have as many free and open discussions as we possibly can within the limits. And very soon we found out that anything about power structures is a major problem. Now, when we say power structures, there's only one power in Pakistan. Everybody knows what it is. There's no need to mention it again and again, make the people that run this university any more awkward. The idea is that if we cannot criticize, if we cannot point fingers at the places where the problems arise from, we cannot find solutions. For too long, we've sort of blamed like prime ministers and chief ministers for the problems we have. When decisions are being made outside parliamentary democracy, you can't blame parliamentary democracy. So the population is caught in a flux. Do we want khilafat? Do we want democracy? Do we want a hybrid regime? The truth is that any model of khilafat without intakhabat or elections is rather nonsensical in modern day and age. So we need sort of a mix between the two systems. In order for that to happen, people need to be able to sit down together. People that have large fan followings like Sahil Adim, Mr. Mughira, they need to be able to sit together and have discussions about what the ummat's shape will look like. You can be very religious, very practicing, sort of homeopathic like I am, tries to pray 5 times a day, sometimes does, sometimes doesn't. But I think deep down, all of us want a society which is not only more religiously oriented, but a safe place for our kids to grow up. Now, I know that most of you don't have kids right now, but inshallah, when you will get married and have children, your perception of reality will change. Nothing will matter more than how you raise those kids. और आपके अंदर वो एक फिक्र पैदा करेगा, what's the polite way of saying this? दिन रात आपको एक चीज़ इन द बैक ऑफ योर माइंड काटेगी बार बार कि मुआशरा किस तरह बेहतर हो सकता है. जब आप मुआशरे की बेहतर करने की बात आती हो तो जो मुआशरे के ताकतवर लोग हैं वो आपको रोकते हैं. वो बार बार आपको नीचा दिखाएंगे कि आप मुआशरे को तब्दील ना करें. किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए. जो हमारा मुआशरा आज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है वो ताकतवर के पैसे कमाने के लिए एग्जिस्ट करता है. ये अकेले पाकिस्तान में सच नहीं, पूरी दुनिया में सच है. आप कोई भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम मुल्क ले लें, जो पावर स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है वो सिर्फ चंद लोगों के पैसे कमाने के लिए बना हुआ है. और उस सब में हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है. हमें बताया जाता है कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आप भी हमारे जितने अमीर हो जाएंगे. ऐसा कभी भी नहीं होगा. जब तक अदल का, इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं होगा, उसकी शक्ल और सूरत पे हम बहस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं वो कैसे कायम होगा, तब तक ये झूठे वादे पूरे नहीं हो सकते. इसीलिए जब आप गौर और फिक्र करते हैं, सोचते हैं कि हमने मुल्क में क्या करना है, सियासी जमातों के लिए वोट करते हैं, तो उन सियासी जमातों से एक सवाल पूछा करें कि निज़ाम को बदलने के लिए आप क्या करेंगे. ये बड़ा आसान होता है कहना कि जी करप्शन सबसे बड़ा मसला है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सबसे बड़ा मसला है, या खान साहब का निकाह कब हुआ है कब नहीं हुआ ये सबसे बड़ा मसला है. दर हकीकत सबसे बड़ा मसला है कि हमारा निज़ाम एक तबके को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है. गोरे तो यहाँ से चले गए, लेकिन वो सोच यहाँ पे छोड़ गए कि कुछ लोग इस मुल्क को चलाते हैं, इस निज़ाम को चलाते हैं, और मैं और आप उनके लिए सिर्फ जानवरों की तरह हैं कि इनको फैक्ट्रियों में लगा दो, अपने कारोबार में इनको एडजस्ट कर दो, इनको मुल्क से बाहर भेज दो कि वहाँ से डॉलर कमा के यहाँ बेचते रहें. लेकिन मुझे और आपको यहाँ पे कोई हक नहीं है. सिविल सोसाइटी पिछले 100 साल के अंदर मूवमेंट्स करके हकीकी आज़ादी ले चुकी है. उस हकीकी आज़ादी को पाने के लिए आपको और मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप मुल्क छोड़ के जा सकते हैं, आप चले जाएं, लेकिन उम्मत का हाल तो बेहतर नहीं होगा.
और फिर यहाँ पे एक फ़िक्र का सवाल आता है कि रोज़े मैशर को जब अल्लाह सवाल करेंगे तो क्या वो सिर्फ इनफरादी के होंगे या इज्तिमाई के भी होंगे? अगर वो इज्तिमाई के होंगे तो मैं और आप शायद फेल कर जाएं। हम दुनिया में आए हैं आखिरत के लिए, उस आखिरत की फ़िक्र के लिए इज्तिमाई का सोचे बगैर ज़िंदगी अधूरी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लें, वो इज्तिमाई फ़िक्र आपके अंदर रहेगी, ज़िंदगी आपकी खोखली लगेगी। इससे पहले हम प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे, जो पूरे पाकिस्तान का नेशनल पास टाइम है, सब खेलते हैं प्लॉट प्लॉट, बहुत पैसे कमाते थे, ज़िंदगी पुरसकून थी, एक नशे की हालत में हम ज़िंदा रहते थे, एक गनूदगी हमारे पे तारी थी। जब कभी कभार रात को तकरीबन 10 और 1 के दरमियान जब इंसान फ़िक्र करता थी ज़िंदगी में, तो ख्याल आता था कि कितनी घटिया हमारी ज़िंदगी है। दौलत तो है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, दुनिया के कई ममालिक हमने घूमे, मैंने और अमान ने भी, लेकिन खोखली ज़िंदगी है। इस पॉडकास्ट में हमने पैसे ज़ाया किए हैं, लेकिन पहली दफ़ा हमें सुकून आता है रात को जब हम सोते हैं कि यार हम कोशिश कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं। तो अपने 24 घंटे डेली में से आप ख़ुद बताएं कि आपने कितना एफ़र्ट किया इज्तिमाई के लिए, कितना एफ़र्ट किया इनफरादी के लिए। इज्तिमाई तौर पे आपके वालदैन, आपके बहन भाई, आपके कज़न, अपने रिश्तेदार, उनके लिए आपने कितनी मेहनत की। आज जब कैपिटल के अंदर बलूचिस्तान से, KPK से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं अपनी फ़रियाद लेके, तो आप जो शहरी हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए, आप उनको वेलकम करते हैं, क्या करते हैं? उनका दर्द महसूस करते हैं? मैं नॉर्थ पंजाब से हूँ, हम मुल्क के बादशाह हैं, सारा बाकी सूबे यही कहते हैं कि मुल्क हम चलाते हैं। आज जब नॉर्थ पंजाब में लोग उठाए जाते हैं तो मुझे समझ आता है मिसिंग पर्सन की तकलीफ़ क्या होती है। जब कश्मीर में इंडिया मुसलमानों को मारता है, उन पर जुल्म करता है, उनके प्यारों को गायब करता है, मुझे तकलीफ़ महसूस अब होती है जब मेरे अपने गायब हुए हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, ये सोचें। वक्त गुजरते पता नहीं चलता। कल की बात है, मैं स्कूल में था, सारा दिन वेलियाँ मारते थे, गेमिंग जोन जाते थे, काउंटर स्ट्राइक खेलते थे, ठीक है, तफरीह करते थे। आज मैं 32 साल का, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता अपनी औलाद के स्कूल भेजूँगा। ये 77 साल के इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में एक मुसलमान लड़के को नहीं पता उसके बच्चे किस स्कूल जाएंगे। हैरान कौन बात है ना। तो इस पे किसने गौर करना है? जो हमारे से बड़े हैं उन्होंने गौर फिक्र कर लिया, उनका वक्त ख़त्म हो गया। मैंने और आपने गौर व फिक्र करना है। आज की नशिस्त का मकसद है कि आप सोचें कि एक उम्मत का इत्तेहाद कैसे बनेगा। बज़ाहिर जब इत्तेहाद की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि बड़ा पुरअमन सा पैगाम है, ऐसे ही इत्तेहाद मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं चाहती मुसलमानों में इत्तेहाद हो, चाहे वो मुसलमान ही हो या गैर मुस्लिम हो, क्योंकि दुनिया के निज़ाम में, इस अमेरिकन एज ऑफ एम्पायर के अंदर सूट नहीं करता मुसलमानों में इत्तेहाद। दुनिया के सारे वसाइल हमारे पास हैं, अक्सरियत में हैं हम, मोस्ट दुनिया की इकॉनमीज़ हमारे तेलों पे चलती हैं। पाकिस्तान की आर्मी कहाँ कहाँ जंग नहीं लड़ती जाके, लेकिन हम अपना दिफा नहीं कर पाते, हम अपने मुल्कों की तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए आप जब किसी सियासी तंजीम को ज्वाइन करें, दीनी तंजीम को ज्वाइन करें, या अपने घर में अपने ताया अबू के साथ पॉलिटिकल बहस भी करें, तो आप सोचें। और ये उतना ही फ़र्ज़ है लड़कों पे और ख़वातीन पे। उम्मत की फ़िक्र सिर्फ एक सेक्स का इशू नहीं है, सबका इशू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी किसी बात से आपको तकलीफ़ नहीं हुई होगी। ये तनकीद आपके लिए सिर्फ नहीं, ये मेरे लिए भी है। मैं अगर अपने 32 साल का हिसाब दूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं अच्छा मुसलमान साबित होऊंगा। मे बी इनफरादी पे शायद, मे बी, लेकिन इज्तिमाई पे नहीं। तो उम्मीद है कि आप सब इस फ़िक्र में शामिल होंगे और जितने हमारे पैनलिस्ट आ रहे हैं उनकी बात गौर से सुनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।